In my last video, I explained you about impossible event. Okay, the next type of event is sure event or certain event. Now, what is certain event or sure event? The event which is 100% possible, always possible, is called sure event. Now, let me explain you with some examples. Now, what is the probability of sun rising in east? As we all know, the sun will always rise in east. So it is 100% possible event. So it is also called sure event. Okay. So if you are asked what is the probability of sun rising in east, so it is a sure event. So its probability will be 1. The probability of sure event is 1. Sure event is also called certain event. Okay. Now next formula we will study is probability of E plus probability of not E equal to 1. Suppose E is an event. Suppose हम जब coin toss कर रहे हैं और head आने की event को हम E ले लें, तो head नहीं आने की event होगी not E और E bar, उसको E bar भी बोलते हैं. तो probability of E and not E is always equal to 1 और not E को हम E bar भी बोलते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल E एक इवेंट है. व्हेन वी आर टॉसिंग अ कॉइन वी गेट हेड. E is the event that we get head. So what will be E bar? E bar will be the event that we do not get head. Do not get head means we get tail. The probability of E plus E bar equal to 1. From this we get two formulas. Probability of E equal to 1 minus probability of E bar. Probability of E equal to 1 minus probability of E bar. And another formula is probability of E bar equal to 1 minus probability of E. Okay, see, probability of E equal to, how we will get 1 minus probability of E bar? Probability of E plus E bar equal to 1. अगर हम E bar की probability को right ले जाए तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. तो what we will get? Probability of E equal to 1 minus probability of E bar. अगर हम probability of E को right ले जाए तो E bar का फॉर्मूला क्या होगा? Probability of E bar equal to 1 minus probability of E. नाउ इतना हमने स्टडी भी किया, उस पे से हमको क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब इम्पॉसिबल इवेंट हो तो 0 होती है, श्योर हो तो क्या होती है 1. ओके, और बाकी सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. श्योर इवेंट की 1, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 एंड रेस्ट ऑल अदर प्रोबेबिलिटी वैल्यू दैट इज P of E ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. And it can also be 0 and it can also be 1. It is 0 when the event is impossible. It is 1 when the event is sure or certain. And rest all probability values lie between 0 and 1. So what do we get? 0 is less than or equal to probability of event E is less than or equal to 1. इसका मतलब ये होता है कि probability की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी. ओके. Now let us move to the exercise. Now exercise 15.1. Probability of an event E plus probability of event E bar. तो ये मैंने अभी समझाया आपको. Probability of event E and probability of event not E, that is equal to 1. So the answer will be 1. Probability of E plus probability of not E equal to 1. The second question. All these are objective type questions. Fill in the blanks. Okay. The probability of an event that cannot happen is dash. Not happen. The event which cannot happen. जो event कभी नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? Impossible event बोलते हैं. बताया था लास्ट वीडियो में. तो the probability of an event that cannot happen, मतलब जो event नहीं हो सकती है उसकी probability नहीं हो सकती है, that means impossible event. और impossible event की probability क्या होती है? 0. एंड सच इवेंट इज कॉल्ड, जो इवेंट नहीं हो सकता है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. तो सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल
event and its probability will be 0. The probability of an event that is certain to happen, certain event अभी बताया मैंने, certain event की probability क्या होती है 1. The probability of certain event is 1. और ऐसी इवेंट को और क्या बोलते हैं श्योर इवेंट. ऐसी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन. सर्टन टू हैपन मीन्स जो इवेंट ऑलवेज पॉसिबल है, जो इवेंट ऑलवेज पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1. और ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट. अभी बताया था मैंने आपको. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Now what is elementary event? जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड और टेल दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए. तो एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है 1. ओके. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एलिमेंट्री इवेंट इज 1. दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दैट विल बी इक्वल टू 1. अगर एक बैग के अंदर 3 कलर के बॉल्स है, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तीनों एलिमेंट्री है. रेड, ग्रीन और ब्लू होना ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स है और तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे बड़ी होती है 0 से, एंड लेस देन और इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था 0 इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 को इक्वल होती है, और 1 से छोटी होती है या 1 को इक्वल होती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, या इन दोनों के बीच में होगी. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन. इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में मैंने बताया था, जिसके होने के चांसेस इक्वल हो. ओके. तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं. जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो दोनों के होने के 50-50% चांस है, इक्वल चांस है दोनों के आने के, इसीलिए वो इक्वली लाइकली इवेंट हुए. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं और हमको ये बताया, जो हमको क्वेश्चन दिया उसमें हमको बताना है कि इवेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार. एक ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है. द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. कार स्टार्ट होती है, उसको दो पॉसिबिलिटी, या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी. क्या दोनों के इक्वल चांसेस हैं? नहीं. अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट, ऑलमोस्ट स्टार्ट, कभी कभी नहीं होगी. लेकिन और गाड़ी की कंडीशन ख़राब है तो वो ज़्यादातर स्टार्ट नहीं होगी और बहुत कम चांसेस है कि वो स्टार्ट होगी. दोनों के स्टार्ट होने के और नहीं होने के चांसेस इक्वल नहीं है. तो क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे कार की कंडीशन कैसी है. ओके. अगर कार की कंडीशन अच्छी होगी तो स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, नहीं होने के कम होंगे, और ख़राब कंडीशन में तो नहीं होने के ज़्यादा होंगे और स्टार्ट होने के कम होंगे. तो दिस इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड बोथ द कंडीशंस आर नॉट द सेम.